Okay, we are done with the sessions. There's also the cookies. This is the last thing we do in this unit, and then we move on to the MySQL and that. We try to finish it up very quickly. In a week's time, we are done with this subject now. Okay? The React.js, JS, and Node.js, let us see that later on. First, you give the example properly. Then, the Python. When we done with the syllabus and all, then we move on and see the interest of students. We can do the real-time projects. We will do that if you are interested. Now, what I'm saying is, listen, that we have the cookies. The cookies, we have all these super globals. We have seen the dollar underscore get, dollar underscore post. Okay. और कौन सा दिखा था? Request, dollar underscore request. We have seen the dollar underscore session. We also seen the dollar underscore server. Right? Server has all the information about the server. The last one, and there's one more, that is the cookies. And the cookies, difference between the cookies and the session is that session is stored on the server and the cookies is stored in the browser. In the We can see that in the browser. And if you close the browser, sessions will be destroyed, but cookies stay. Cookies stay because you close the browser. You saw, for example, I said you bought something from the Amazon, or you are liking something on Amazon, and now you open up the Facebook tomorrow, and in the ad of the Facebook you see though that same ad coming up in the Facebook ads. How they get it? They get it from the cookies, because whatever you have uh, chosen from the Mintra or Amazon, they have their cookies there, and those cookies have stored your preferences. Now you open up some Google page, and the Google actually sees that, uh, makes their ad on the base of those cookies. And because now you close the browser, cookies are still there. Cookies actually have some time. Okay, you have some what time? Every cookie has a time. And in a session, we just created explicitly some dollar underscore session of name equals to whatever, right? Here for the cookie, you have a function called set cookie. Set cookie is a function. We can set a cookie with its key and value pair, name and value, like associative array I told you. But with it, there are many more things like time, कि ये expire कब होगा, ठीक है? इसका ये उसके बाद टाइम के बाद ये कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो? क्या सेम पेज में एक्सेस कर सकते हो या किसी खास पेज में एक्सेस कर सकते हो? उस पेज का नाम देना है, या आप स्लैश कर दो तो उसका मतलब है सारे पेजेस में एक्सेस होगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साइट है और हम चाहते हैं कि एक यूजर आ गया, या वोटिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वोटिंग कर रहे हैं हम इन अ डे, एंड वी से कि आप एक बार वोट कर सकते हो पर डे, या एक वीक में, एक मंथ में आप सिर्फ एक बार वोट कर सकते हो इन दिस मंथ. So what we do when we vote, okay, we store the in a cookie the details of that user. So if he comes back, maybe we take his IP address or MAC address or his username and ID and all that. And now when he comes back, we already see the cookie whether this is set or not, okay? And if he is set already, we will not allow him to vote. For example, maximum times we have, for example, remember login details. Remember, you come tomorrow and you again that you don't have to again give username password. Actually, you still have to log in, but that login name and password comes up automatically from your browser. You understand? If at all you want to store that you remember me, let us try to do that little workout. Voting करेंगे या करेंगे ये? Remember me करेंगे मेरे ख्याल से वो इससे relate होता है ना? We have a remember me button. We have what? Remember me. Let's create a remember me checkbox here. Say for example we are saying या तो voting वैसे इसी के साथ relate होगा ना? Let us remember me. यानी कि बंदा next time आ गया, उसको यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत, वो हाँ करना है, लॉगिन करेगा वो तो, लेकिन वहां पे तो इसमें सबमिट नहीं होना चाहिए, इसमें लॉगिन होना चाहिए नाम है ना. हाँ, यहाँ पे वैल्यू की वजह, यहाँ पे इसको मैं लॉगिन करता हूँ मैं. ये लाइव सर्वर के साथ मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं है ना, इसका वो लाइव सर्वर वाला कहाँ पे आया है? इज इट? ये किस में खोला इसने? एक्सटेंशंस,
Is it Chrome or something? नहीं लगता मुझे। हमने क्रोम में किया था ना एक्सटेंशन लाइव वाला। तो इसका लाइव वाला क्यों नहीं आ रहा हूँ? हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा ना फिर। एक्सटेंशंस का कुछ मसला है यहाँ पे। अब एक्सटेंशन बाद में करेंगे, वक्त से हो जाएगा। चल leave it for a while, we'll see that. Say what? Localhost? Localhost PHP or index.php, huh? My PHP, huh? Okay. Now whatever we can refresh here to say login आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे काम पासवर्ड के बाद मैं चाहता हूँ कि रिमेंबर दूं मैं। क्या दूं मैं? क्योंकि प्री टैग में है तो अगर मैंने लाइन मारी तो ये उधर भी लाइन मारेगा ना। तो मेरे पास क्या आता है इसका बताएंगे कोई? चेक बॉक्स कैसे करेंगे हम? इनपुट बॉक्स चेक बॉक्स, ठीक है ना। So name is equal to chk remember रखता हूँ मैं, remember. Do right because usually I do it like that. I say firstly chk to understand this is checkbox. txt for text box and all that. Do that and then write proper name. chk remember and give some id to it if you want to give to id. id is equal to remember. Maybe I can use remember. Whatever. And right here इतना बड़ा क्यों चाहिए मेरे को? इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, ये टेक्स्ट दिख रहा है ठीक? मोटा मत करो इसको। और ओके, ये और चलाना पड़ेगा थोड़ा सा इधर, इससे बाद में नहीं चल रहा। इसके 1400 से आ गया ना ये थोड़ा सा ये। एनीवेज वी गॉट हियर कंट्रोल एस to save it, go here to refresh it, control S to save this and refresh it to get the remember button। हाँ, लिख के कुछ नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ लिखा नहीं, हमें लिखना चाहिए ना यहाँ पे। I said like remember me, ठीक है ना। कंट्रोल एस, कम हियर, लाइव सर्वर भी चल नहीं रहा, उसको पता नहीं क्या मसला है। now remember me here, right? अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देते हैं करेक्ट वाला, जुनायद एंड 1 2 3 4 5 रखा था ना हमने। सो if I press remember me and I say login, it go to the next page, incorrect credentials, there is some issue. What is the incorrect? Say Junaid and 1 2 3 4 5 and I say remember me login। एक गलत क्यों है? क्योंकि हमने क्या रखा था इसमें? यूजर नेम पासवर्ड क्या रखा था? 1 2 3 5 है, not 3 4 5। कंट्रोल एस टू सेव इट, इट इज 1 2 3 5 था। अब मैं करेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 and I say remember me, I say login, I go to the home page। okay, वहां पे कुछ नहीं लिखा था हमने, यहाँ पे होम पेज पे कुछ नहीं लिखा था और बैक वगैरह नहीं लिखा था, वापस लॉग आउट करने का था। इसमें लॉग आउट वॉग आउट नहीं किया था हमने क्या? वो किसने किया था? लॉग आउट किया था ना हमने htdocs, टीम में मत किया था। हाँ ये वाला है, शो मोर ऑप्शंस। वो पी में किया था ना हमने इसमें। ओके, ये लॉग इन है ना, लॉग आउट वगैरह इसमें है ना ये। हाँ ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। इसमें खुले हुए ज़ूम, नाउ वी गो लाइव हियर।
इसमें स्क्रीन हो गया ना मुझे छोटा, और हमारा इंडेक्स इसको क्लोज करेंगे, क्लोज एवरीथिंग, क्लोज दिस थिंग आल्सो, ओके। ये लॉगिन हमारा है, गो लाइव, इसको क्लोज करेंगे फिलहाल, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ जी, क्या नाम था हमारा? लोकल होस्ट /p/ login.php, उसमें था ना वो इंडेक्स कुछ, वो फिर किया था इसमें हमने, okay. And now here what I do here is I will add up what, उसमें तो पेज पे कुछ था ही नहीं जो हमने किया था ना, तो पुराना कभी कहीं किया था उसमें। यहाँ पे एक चेक बॉक्स करेंगे, यहाँ एक पहले नाम करेंगे चेंज का लॉगिन, और चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे कोई बताएगा? इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और नेम रखना है इसको जरूरी, CHK means check box, remember REMEMBER, ID is equal to REM, remember whatever, and give some name to it, okay. इसका नाम रखेंगे यहाँ पे remember me whatever, हाँ, remember me, थोड़ा सा लाइन मारेंगे, लॉग इन पीछे हो जाएंगे, Ctrl+S and refresh this here, okay. This is remember me, we got it. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि if I have a correct credentials Junaid and 1 2 3 4 5, even though I press remember me, it won't work because we have not, okay. Now if I come back here, log out, it doesn't remember me, okay. Now we want it to remember us, okay. What was my username, what was my password, we want to remember this, even though we'll do this thing also in a sessions later on, because we want to secure this thing, but right now we show it in the cookies. Because if you come tomorrow or day after tomorrow, until we give that cookie the time slot, ये कब expire होगा, तब तक ही हमें remember करना चाहिए ना. Anytime we come back, next day we come back, it will still remember us. If we give it a for example 1 month, the cookie 1 month तक रहेगी ना. So that means if we come even weeks time and come here, it will remember. यहाँ पे लिख के आना चाहिए name जुनैद और 1 2 3 4 5 खुद ही, so that it remembers. Does it make sense? So इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, that I say that if the username password is firstly correct, the username password is, because we started the session and this username and password is here, which is it should come from the database later on, that I am saying firstly कि अगर आपने login को प्रेस किया है, यानी कि ये दो बंदे सेट है, यानी कि पोस्ट को गया है, पोस्ट को कब जाएगा, $post में कब जाएगा, जब आप लॉगिन को क्लिक करेंगे, है ना, क्योंकि फॉर्म जो आपका है वो फॉर्म का मेथड और एक्शन, मेथड और फॉर्म की एक्शन इज गेटिंग द सेम पेज एंड फॉर्म का मेथड पोस्ट है. उसका मतलब क्या है कि जब जो ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया, जो कि सबमिट बटन था, उस पे क्लिक किया, तो जो भी इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जो भी है या ये चेक बॉक्स है, वो कहाँ जाएगा, $post में जाएगा ना. It will go to the $post which is an associative array. So वो कब सेट होगी, जब आपने प्रेस किया है, तो पहली बार तो सेट नहीं है, तो इसलिए हम वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपका $post सेट है या नहीं है, क्योंकि वो नहीं है, बात है, बिकॉज इट इज नॉट देयर, जो ये जो पासवर्ड है आपका है, ये सेट तो है नहीं, ठीक है ना, और ना ही टेक्स्ट में पासवर्ड है, तो ये चीज होगी नहीं, तो पहली बार ये होगा नहीं, तो पहली बार एल्स में जाएगा ये, ठीक है. अगर आपका $post टेक्स्ट नेम और $पासवर्ड सेट नहीं है, तो ये सारा चीज होगा ही नहीं, कोई भी चीज नहीं होगी. तो जब ये है तभी इसमें जाएगा, ये सेशन स्टार्ट करेगा. उसके बाद इफ इज सेट $session name, वो भी पहली बार तो नहीं होगा,
इसलिए इसके एल्स में जाएगा, इस इफ के, क्योंकि अभी आपने सेशन वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। वो आप तब करोगे क्रिएट जब आपका टेक्स्ट नेम जो इसमें था वो इस नेम के बराबर होगा और जो पासवर्ड है वो इस पासवर्ड के बराबर होगा, तब जाके आप सेशन क्रिएट करो, है ना। इससे पहले कि आप जाओगे कहां पे, दूसरे पेज पर, दैट इज home.php पे जाओगे, है ना, वी विल सेट ए कुकी। लेकिन कुकी कब सेट करना चाहिए, जब ये क्लिक होगा, जब ये अगर क्लिक की सो वो कब होगा, तो इसलिए मैं यहां पे लगाऊंगा इस एल्स के इसमें कि ये एल्स कब चलेगा, जब अगर सेशन सेट नहीं है, अगर सेशन सेट यानी कि इसने पहली बार किया है, ये पहली बार काम कर रहा है, सेशन सेट नहीं हुआ है, सेशन वेरिएबल सेट नहीं हुआ है, तो उस सूरत में हम देखेंगे पहले कि यूजर नेम पासवर्ड क्या करेक्ट है ना। इफ द यूजर नेम पासवर्ड इज करेक्ट देन आई विल सेट द सेशन नेम एंड पास टाइम भी लिया मैंने, नेम भी लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है मैं कुकी सेट करूंगा पासवर्ड यूजर नेम याद रखने के लिए, लेकिन वो कब करूंगा बसीरत, जब रिमेंबर मी क्लिक होगा, जब रिमेंबर मी चेक बॉक्स को चेक किया होगा आपने। अगर आपने चेक नहीं किया है, यू डोंट वांट टू रिमेंबर, then it won't. So it will only create a cookie wherein I set my username and password there, so that the next time I come back and I get it from the cookie. Okay. So but when the checkbox is clicked, how we check the checkbox clicks here? Say if is set, if is set, यार स्मॉल कर दे इसको, if is set कौन is set होगा बताओ, चेकबॉक्स चेक्ड है या नहीं, वो किसके पास होगा, पोस्ट में होगा, क्योंकि जितने भी चीजें आपके यहां पर है वो सारी की सारी पोस्ट में होगी, $पोस्ट वेरिएबल में होगी, जो ही आप लॉगिन को क्लिक करोगे। सो मैं वही कह रहा हूं यहां पे, अगर इस सेट है $_पोस्ट ऑफ, इसका नाम क्या रखा था हमने, CHK। अगर भाई साहब ये सेट है तो आप कुकी सेट करो, यानी कि रिमेंबर मी है, दो कंडीशन लग गई। एक कंडीशन ये लग गई कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए पहले, तभी तो इसमें घुसेगा ना, पहली बार अगर यूजर नेम पासवर्ड ही करेक्ट नहीं है तो आप क्यों याद रखोगे, है ना। तो पहली बात ये है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है कि चेक रिमेंबर क्लिक किया हुआ, तो उस सूरत में मैं करूंगा सेट कुकी। क्या करूंगा, सेट कुकी। पहला होता है उसका जो है वेरिएबल, क्या क्या नाम रखना चाहते हो, नेम, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू डालना चाहते हो उसमें, वो मेरे पास $_नेम के बाद $नेम मेरे पास है ही ऊपर ना, ये है ना नेम। अगर करेक्ट है तो मैं यही डालूंगा जो डेटाबेस से लाया हमने, तो वही नेम डालूंगा इसमें। उसके बाद टाइम, टाइम कितना देना चाहते हो, मैं देखूंगा पहले करंट टाइम कितना है, जितना करंट टाइम है प्लस उसको करो जितना आप देना चाहते हो। करंट टाइम जो भी है उस जब आपने क्रिएट किया उस वक्त जो टाइम था, उसके बाद कितना, 1 दिन देना चाहते हो, 10 दिन, 15, 20, 1 साल देना चाहते हो, जितने टाइम देना चाहते हो उतनी टाइम रहेगी, फिर कुकी मर जाएगी। हम फिलहाल रखेंगे 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के बाद ही मरना चाहिए खुद ही, ऑटोमेटिकली इट विल डाई। ओके, देयर विल बी नो कुकी आफ्टर 60 सेकेंड्स। इसको नहीं करते, इसको सिर्फ सेट कुकी, सेट कुकी हो गया तो स्टार्ट हो गया। और डालेगा कहां पे ये वैल्यू, $_कुकी में। $_कुकी इज एसोसिएटिव एरे जहां पे ये चीज डलेगी, तो स्टार्ट जो बता रहे हो वो इसी से हो रहा है, सेट कुकी से। नेम इज ए की वैल्यू एंड $_नेम हम थोड़ा ज्यादा देते हैं, 100 सेकेंड्स देंगे, ठीक है ना, या 2 मिनट देंगे सीधे 120 सेकेंड्स। कामा उसके बाद होता है कि एक्सेस कहां से होगा, मैं कह रहा हूं भाई साहब एक काम करो, इसको एक्सेस करो आप हर जगह से, तो फिर इसको फॉरवर्ड स्लैश लगाना, वरना यहाँ पे अगर आप चाहते हो फलानी पेज में खाली एक्सेस हो तो वो पेज का नेम यहाँ पे देना, ठीक है, abc.html बस वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये पेज का नाम देना है। उसके बाद और भी तो 1-2 चीजें होती हैं वो आप देख लेना फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। दैट्स लाइक अगर सिक्योर है कि नहीं है, HTTPS अगर होगा तब करो, अगर HTTP होगा मत करो तब,
तो अगर ट्रू लिखा उसके बाद, उसके मतलब है कि सिक्योर्ड है या नहीं, एंड सो ऑन सो देयर आर टू थ्री ऑप्शंस आफ्टर दिस. Similarly, I will duplicate this for the password. I say एक मैंने नेम खड़ा किया और दूसरा क्या किया मैंने खड़ा पासवर्ड. और इसका नाम ऊपर मेरे पास है ना, वैल्यू कौन सा डालूंगा मैं, जो ऊपर पासवर्ड है ही, पी कैपिटल है, ठीक है. पासवर्ड टाइम स्टैम्प यही दूंगा, सेम बात. तो हो गई मेरी कुकी सेट. ठीक है. कब मेरी कुकी सेट होगी, रिमेंबर क्लिक होगा, चेक बॉक्स भी क्लिक होगा और यूजर नेम पासवर्ड इज करेक्ट. अगर ये सारी चीजें ठीक है, फिर मैं एक काम कर रहा हूं, मैं दो कुकीज को बना रहा हूं. तो कुकीज बनने से तो काम नहीं होगा. तो जब मैं वापस इसके पास आऊंगा, किसके पास, जब मैं लॉग आउट करके इसके पास आ जाऊंगा, तो उसको रिमेंबर करना है ना मुझे. अगर मैं रिमेंबर किया है, तो यानी कि रिमेंबर करके क्या होगा, कुकी में तो है, कुकी में मेरा नेम और पासवर्ड चला गया ना, वहां से ग्रैब करके कहां डालना मुझे, इन टेक्स्ट बॉक्सेस. तो वहां वो किससे होगा, जावास्क्रिप्ट से. गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसका वैल्यू सेट करूंगा, ये ना डॉट वैल्यू इसका डालूंगा, जो भी करना है, ठीक है ना. तो वो जावास्क्रिप्ट चूंकि हम लास्ट में करते हैं ना जब ये बनता है, तो हम जावास्क्रिप्ट एंड पे करेंगे, यहाँ पे बॉडी से पहले. यहाँ मैं PHP का टैग खुला रहा हूँ, पहले PHP का टैग खोलेंगे हम, बिकॉज दिस इज PHP कोड. ओके. अब मैं चाहता हूं क्या, कि मैं कुकी से निकाल के वैल्यूज डालूं इन टेक्स्ट बॉक्सेस में. लेकिन हो सकता है पहली बार जब आएगा तब तो नहीं होना चाहिए ना, पहली बार तो अभी कुकी भी नहीं बनी. तो मैं क्या हुआ, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर कुकी. पहले तो कुकी बनी भी है कि नहीं बनी है, अगर नहीं बनी है तो मैं क्यों करूंगा अभी. उसका नाम क्या था, नेम, है ना. इफ इज सेट डॉलर कुकी नेम एंड इज सेट डॉलर अंडरस्कोर कुकी ऑफ पासवर्ड. ठीक है जी. जो ना वहां पे हमने कुकी सेट की, वो दो. अगर ये सेट है तब जाके तू कर, वरना मत करना. अगर सेट ही नहीं है अभी, फॉर एग्जाम्पल आपने रिमेंबर नहीं किया है, क्योंकि कोड तो चलेगा ना, जब ये पेज आएगा तो कोड तो चलेगा ना, कोड तो चलना है. तो अगर मैं वहां से ड्रैग करूं, कुकी से कुकी बनी ही नहीं है, तो तब तो नहीं करना चाहिए. तो कुकी अगर बनी है तब करना चाहिए. ठीक है. तो आपकी नो मर्जी नहीं है, कल आ जाओ परसों आ जाओ. अगर कुकी आपका 1 मंथ का रखा है, 1 मंथ में भी आप आ जाओगे, तो ये वाला तभी चलेगा अगर कुकी सेट है, नेम एंड पासवर्ड कुकी वाला. लेकिन अगर ये कोड चला है तब जाके, कौन सा कोड, जो भी हमने किया था ये वाला, अगर ये कोड बना है, ये दो कुकीज बनी है, तो ये दो कुकीज किस में होंगी, ये एसोसिएटिव एरे में होगी ना, डॉलर अंडरस्कोर कुकी में. और ये स्टोर कहां पे होगी, ब्राउजर में. ये ब्राउजर में स्टोर, हाँ, इसको हम देख भी सकते हैं ब्राउजर में, यू कैन सी दैट इन एप्लीकेशन. ओके. और इन द सेटिंग्स आल्सो, सेटिंग्स में भी इसको ढूंढ के देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं. हमें भी देखेंगे उसको जब बनाएंगे. हाँ, दिस इज लाइक ए की एंड दिस इज द वैल्यू. एसोसिएटिव एरे का होता है की वैल्यू पेयर होता है ना, की वैल्यू पेयर होता है एसोसिएटिव एरे का, नेम एंड ये, हाँ, नेम इज ए की, दिस इज डॉलर, नेम इज दिस इज द वेरिएबल हियर ऑन द टॉप, वो वैल्यू आएगा, हाँ, वो नेम में चला जाएगा. और जो पासवर्ड उधर 1 2 3 4 5 था, वो चला गया किस में, जा गया पासवर्ड में चला गया. ठीक है. लेकिन अब मुझे फैच करना है, जब मैं आया इस पे, चाहे मैं पहली बार आया दूसरी बार आया, तो कोड चलेगा ना. तो कुकी से डेटा जाना चाहिए इनमें, ठीक है ना. तो पहली बात ये है कि मुझे देखना चाहिए कि कुकी सेट थे कितना. अगर कुकी सेट है नहीं, मेरे को नहीं करना चाहिए. इसलिए इफ इज सेट डॉलर उसको कुकी नेम एंड इज सेट डॉलर उसको कुकी, अगर दोनों कुकीज बनी है, नेम भी बना है, और then in that case I should do what, I will create a variable here, dollar n equals to डॉलर अंडरस्कोर कुकी ऑफ नेम. ठीक है ना. मैं वो डालूंगा n में, और डॉलर p इक्वल्स टू
डॉलर नॉट अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर कुकी ऑफ पासवर्ड। जो पासवर्ड में था वहां पे एसोसिएटेड एरे में वो पी में डालो और जो नेम में था वो एन में डालो। अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा जावास्क्रिप्ट। क्या चलाऊंगा? क्योंकि आप पीएचपी में जावास्क्रिप्ट चला रहे हो तो इको करना पड़ेगा। इको डबल कोट्स क्लोज एंड टर्मिनेटर, ठीक है ना? तो टर्मिनेटर लगाइए, इको में चलेगा। मैं इसको ऊपर डालता हूँ। नाउ आई यूज व्हाट? स्क्रिप्ट। आई यूज द स्क्रिप्ट टैग एंड क्लोज द स्क्रिप्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना। व्हाट शुड आई डू? What should I do in the script here in JavaScript? I should first select that text box. So मैं डालना चाहता हूँ name. I should select the password text box जिसमें डालना चाहता हूँ मैं password, है ना? तो how we do that? Document dot दिखाई देना document small document है ना? Document dot get element by ID करेंगे। Get element by ID, ठीक है ना? Whatever the ID is, because हमने ID शायद उनका दिया नहीं अभी। पहले उनका ID देंगे ना इनका टेक्स्ट बॉक्सेस का, क्योंकि हमने ID मत दिया। ये ना, ये है ना नेम, इसको txt नेम, हाँ इसको आईडी करेंगे जी। हाँ नेम पे भी कर सकते हैं। आईडी आईडी देंगे इसका नाम txt नेम ही देंगे, ठीक है सेम। और इसका पासवर्ड का है ना आईडी इक्वल्स टू txt। हाँ हम नेम से ही कर सकते हैं। वी कैन कॉल यूजिंग द नेम, जो नेम इनका होता है txt पासवर्ड, ठीक है ना? तो आई वांट टू सिलेक्ट this box. How can I select this box? By document.getElement by ID, and what is the name inside? txt name, हो ना? हो गया ये सिलेक्ट। और डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू इसका इक्वल्स टू, यहां है ना एन में $n, लेकिन बट दिस इज जावास्क्रिप्ट एंड आई हैव टू यूज द सिंगल कोट्स, हाँ क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में है ना अभी, वी आर नॉट इन पीएचपी, कांट यूज डायरेक्ट $n, सिंगल कोट्स, ठीक है जी? अगर हम ठीक कर रहे हैं, गलती नहीं है, कहीं कहीं दिखा नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। Alt और डाउन एरो भाई 3 बार हो गया, कंट्रोल से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब txt, ये देखना करेक्ट कर रहा हूं मैं यानी पासवर्ड। अबे यार ये उर्दू कहां से आ गया? लैंग्वेज चेंज हो गई ना इसकी कुछ। वो क्या रहा है भाई, किधर का डिलीट कर रहा है? txt पासवर्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में डॉलर $p, ठीक है ना? ओके आई गॉट इट। खेलता था यानी कि मैंने वहां से लाया और डाला किसमें? इनमें। कंट्रोल एस। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट्स हैपनिंग। इज आवर कोड करेक्ट और नॉट? रिफ्रेश। ना लाइस रूल क्या मसला हो गया? we have Junaid and we have 1 2 3 4 5 and I'm saying remember me and I go to the login. Now login is happening correctly, ठीक है? अगर हमने ठीक किया, लॉग आउट करेंगे तो वहां पे आना चाहिए जुनैद आ गया, लेकिन पासवर्ड नहीं आया। कुछ गड़बड़ किया हमने पासवर्ड को, इसमें गड़बड़ की है हमने, क्योंकि एन वाला तो आ गया परफेक्टली, ठीक है? इसमें शायद पी कैपिटल है, वहां पी स्मॉल होगा मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, हाँ नहीं नहीं txt, हाँ txt पासवर्ड तो पासवर्ड ही है ना, लेबल मत क्या उन्हें, इनपुट टाइप पासवर्ड नेम टेक्स्ट पासवर्ड, हाँ
आईडी आईडी ठीक है ना। तो पासवर्ड क्यों नहीं किया इसने, तो उसने वो तो किया, देखें गड़बड़ क्या है। डॉलर पी इज इक्वल टू डॉलर कुकी ऑफ पासवर्ड, ये पी स्मॉल था क्या जब कुकी क्रिएट की हमने, कुकी कहां पे क्रिएट की, सेट कुकी पासवर्ड है, पी एस एस पी स्मॉल है ना, कम आपस टाइम, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजमेंट बाय आईडी टीएक्सटी पासवर्ड, ठीक है, डॉलर पी मुझे तो ठीक ही लग रहा है। हम एक काम करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, इको करेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड आया है मेरे को, नहीं आया, यहाँ पे इको क्या करेंगे, इको डॉलर पी, 1 2 3 4 5, पासवर्ड तो ठीक है ना, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड पकड़ रहा है इसमें, लेकिन इसमें नहीं डाल रहा, किसमें, डॉक यहाँ पे कुछ देखो हमने कहाँ गड़बड़ किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी पासवर्ड, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है इसको, टीएक्सटी पासवर्ड को, कुछ गड़बड़ है इसमें, यहाँ पे गड़बड़ है, ये वाला सीधे कॉपी पेस्ट करेंगे, वहां पे क्या लिखा था, ये पासवर्ड या इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम इज इक्वल टीएक्सटी पासवर्ड, आईडी इज इक्वल टीएक्सटी पासवर्ड, ठीक जो है, जो ठीक ही दिख रहा है ना, कंट्रोल सी, पासवर्ड बिल्कुल ला रहा है, कुकी से ला रहा है ना पी में, वो पी मैंने प्रिंट किया ना इको, वो कर रहा है बराबर, अब मुझे डालना किसमें है, हाँ तो इसमें क्यों नहीं डाल रहा है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, डॉक्यूमेंट डॉट तो बाकी ठीक है ना, इसको रिफ्रेश करेंगे, आ रहा है, इसको कुछ इसमें नेम में कुछ गड़बड़ पता नहीं क्या था, क्योंकि आप कभी भी आओगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे करोगे आप शिफ्ट ऑल्ट एंड जे to see the, come here and shift alt and J, should we say control alt and J, it's not working, so let's go to inspect like this, ये काम ही नहीं कर रहा, नहीं J होता ना, पता नहीं क्या, no don't worry, now if we go here and we go to the applications, okay, the application select ही नहीं कर रहा, applications, and there is a cookie, now we got one cookie here, मेरे ख्याल से वो एक्सपायर हो गई होगी, इसको रिफ्रेश करेंगे, वो एक्सपायर होगी ना, हमने 2 ही मिनट रखे थे ना, दैट्स एक्सपायर्ड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट हियर, सो हम फिर से करेंगे एक बार, जुनैद, एंड वी गिव इट अ पासवर्ड ऑफ 1 2 3 4 5 एंड आई से रिमेंबर मी, अभी तो कुकी बनेगा, रिमेंबर मी, नाउ इफ यू सी हियर ऑन द साइड कुकी बन गई है ना, नाउ लुक हियर, हमारे पास बन गया ना, पासवर्ड दिस, नेम दिस, द कुकी इज क्रिएटेड, नाउ जब भी 2 मिनट हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें अगर सेटिंग्स में भी जाएंगे, ब्राउजर की सेटिंग्स में, तो वहां पे होता है ये, इसमें हमारे पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप कुकीज एंड अदर साइट डेटा देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑल साइट डेटा एंड परमिशंस, तो ये लोकल होस्ट वाला जो आपकी कुकी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे लोकल होस्ट में, तो लोकल होस्ट वाली कुकी बन चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट करेंगे इस कुकी को, या आप कभी भी ब्राउजर को डेटा डिलीट करोगे, कुकीज डिलीट करोगे, तो आप देखोगे वो जो वाला काम है ये आपको होगा नहीं, क्योंकि वो डिलीट हो गई, अगर आप वापस जाओगे लॉग आउट पे, सो इट वोंट हैपन, कुकी डिलीट हो गई, तो अब जब कुकी डिलीट हो गई तो यूजर ने पासवर्ड रिमेंबर वाला नहीं आ रहा, यहाँ पर भी गायब हो गई,
बस में आ रही है। सो अगर हम इसको कम टाइम देंगे, कोड में हम इसको देंगे कम टाइम, बहुत कम टाइम देंगे हम इसको कोड में। ब्लूटूथ कहाँ गया यार, ये मैं क्या करूँ, वो कहाँ गया हमारा ब्राउज, ये मैं सुन सुबह ही करे थे, रेस कोड मैंने बंद की नहीं, ये है ना, हाँ ये है ना, सॉरी। तो इसमें हम टाइम देंगे कम। तो अगर हमें कुकी डिलीट भी करनी होगी, जैसे हमने वहां पे किया डिस्ट्रॉय, तो कुकी अगर डिलीट करनी होगी हमें क्या करनी होगी, वी वांट एक्सप्रेसली डिलीट कि भाई यहाँ पे एक बटन हमने बनाया अनरिमेंबर में और डिलीट द कुकीज व्हाटएवर, मिशना सर हमने डिलीट करी, तो उसके लिए सेम ही फॉर्मेट है, करना कुछ नहीं, उसके लिए अलग मेथड नहीं है, सिर्फ टाइम हमें पास देना है, क्योंकि टाइम गया तो कुकी गई, ठीक है। तो इसमें आप टाइम जो आपका है पास्ट वाला टाइम देंगे, जैसे जो आपका करंट टाइम है उसको माइनस कर दो कुछ, तो वो खेल खत्म हो जाएगी, है ना। जितना टाइम उसमें आपने दिया था वो टाइम आप माइनस कर लो, और अगर उससे भी पहले आपने कोई टाइम दे दिया, करंट टाइम मैंने क्या कहा, अगर इसको 10 बज गए हैं, ये करंट करंट टाइम देगा, यहाँ पे देखो आप, कंसंट्रेट हियर, ये सेट कुकी पे ध्यान दो, सेट कुकी जब मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली सेट कुकी जब मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला, उसमें मैं दे रहा हूं ये इस नाम की और इस वैल्यू की, और टाइम स्टैम्प में दे रहा हूं ना 2 मिनट, करंट टाइम से जब उस वक्त टाइम था उससे 2 मिनट, ठीक है ना। तो अगर वो दो में, अब मैं अगर अभी आ रहा हूं, मैं डिलीट करना चाहता हूँ विद दिस, मैं इतना टाइम माइनस करूंगा, करंट टाइम माइनस व्हाटएवर 2 सेकंड्स, या आपने पास टाइम दे दिया, अभी 10 बजे थे, मैंने आधा घंटा को रखा, अब मैंने इसको यहाँ पे करंट टाइम माइनस 2 आवर्स कर दिया, वो बन गया ना इधर का, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया ना। तो इसको सिंपल डिलीट करने के लिए यहाँ पे टाइम माइनस उतना टाइम दे गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे इसको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ खाली, ठीक है, दोनों को कंट्रोल एस, एंड आई जस्ट वांट रन इट इन द ब्राउजर। एज कहाँ से आ गया, वो था ना क्रोम, ठीक, एज में खोल रहा है ना, इसीलिए एज है, ये क्रोम नहीं है, एज में हमारे पास वो ब्राउजर नहीं था ना, पोर्ट, ये एज खोल रहा है ना, इसलिए उसमें लाइव सर्वर का नहीं है, इसीलिए उसमें नहीं हो रहा ना। एनीवेज वी सी इट हियर, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है ना ये, somebody waiting, oh 1 minute, huh? We are done. I am saying just how many seconds, 10 seconds, 1 2 3 4 5, चूंकि सामने बिस्तर से बाकी पर शंगा क्लिकन साइड्स, क्यों चुन एमसीए करूं, वो सन गार्ड करने कुन जाए। Now look here, this is 1 2 3 4 5, and if I go log out here and I come back, it's gone, and you can see here it's gone, 10 seconds automatically gone, देखा, it is automatically gone from here, even though you don't log out, you stay there, cookie will be gone, cookie after 10 seconds जितना आपने टाइम दिया उसके बाद वो खुद ही जाएगी, okay, after 10 seconds it will be no more here, we have to actually it's gone actually, huh. If I go here it's gone actually, it's not showing here, it's gone automatically, so you can't, you, so this is maximum time, you want to remember, you want to have voting, that एक ही बंदा वोट करना चाहिए, तो या इसमें जो है और कितना टाइम आप रखेंगे वो सारा इसमें टाइम है वगैरह, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक you have next class, why is the Camtasia now, so H